Is that right? I want to start this YouTube वाला thing from a very long time. अभी मैंने ये नहीं सोचा था 18 साल की उम्र में कि मैं 25 साल की उम्र में एक कंपनी रन करूंगी, बट मेरी इनसिक्योरिटीज इतनी बढ़ गई थी कि नहीं हो पा रहा था. ऐसे नहीं कि तुम्हें किसी को मर्डर करना, तुमने किसी का मर्डर कर दिया. Hi, this is Ria and I'm 25, living in Gurgaon with my brother. So, I want to start this YouTube wala thing from a very long time, a very, very long time when I was around 15 or 16 because I was so fascinated with all these YouTubers. And Ria, you can do it. But that insecurity wala part wana, kabhi I was not able to get over it and start and even when I was in my college I thought that I should start vlogging and everything, but I was I was so insecure. At that time I was around 65 kg 66 kg, which is my dream. Now I would give anything to be 65 or 66 kg because now I'm above 90 kg and I'm just sick of it, literally. So I started gym and I'm very proud of myself that I'm being very consistent on this thing because I want to lose my weight by the end of this year, and that is end. This is the final thing because I'm so frustrated because of this. So my point is this, my berries, that you never know कि आपके आने वाले future में क्या होगा, ठीक है? You never know. Because when I was 55 or 60 and then 65 and then again at the COVID time, I lost a good amount of weight by doing home workouts, ठीक है? And I was again 55 kg and I was damn happy after completing my graduation and even COVID khatam हो गया था. I got my first job in NCR. So मुझे नहीं पता चला कि कब धीरे धीरे I start gaining weight because I can't stop myself from overeating. Yeah, I said it. And because of that, धीरे धीरे मेरी तबीयत ज़्यादा I started having health issues and धीरे धीरे PCOD, PCOS, blah blah bullshit. हाँ, तो again at that time when I thought I should start and this, but मेरी insecurities इतनी बढ़ गई थी कि नहीं हो पा रहा था. मैं खुद से कर ही नहीं पा रही थी, मुझसे हो ही नहीं रहा था. But now, finally, when I'm 25 and I'm an adult, I am a fucking adult, but मुझे नहीं पता कि एक्चुअली एक अडल्ट होता क्या है. बिकॉज आई फील लाइक कि जब मैं 18 साल की थी और आज मैं 25 साल की हूँ, तो जब मैं 18 की थी तो मैंने सोचा होगा कि एट 25 यू विल बी हैविंग अ गुड लाइफ, विच आई एम हैविंग. आई एम नॉट डिनाइंग अबाउट इट, बट आई थॉट दैट आई विल बी मोर मैच्योर and I will take right decisions. But ऐसा नहीं होता. This is not true. आप 18 के थे तो 18 के हिसाब से you were having 18 वाले problems, and when you are fucking 25 now you have problems in your life as a 25 वाली problems. So my point is this, that problems कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती हैं. जब तुम 35 साल के होगे, 40 साल के होगे, तुम्हारी लाइफ में तब भी प्रॉब्लम्स होंगी एंड यू विल बी फिगरिंग आउट एट दैट टाइम. इट्स सेम एज लाइक एग्जाम्स ब्रो. या क्योंकि जब तुम 10th में आते हो तुम्हें 5th क्लास के एग्ज़ाम्स ईजी लगते हैं, लेकिन जब तुम 12वीं में आते हो तो तुम्हें 10th के एग्ज़ाम्स ईजी लगते हैं. तुम जब कॉलेज में आते हो तो तुम्हें 12th वाले एग्ज़ाम्स ईजी लगते हैं. सेम गोज़ विद लाइफ इन द सेम मैनर. जब तुम 5th में होते हो तुम्हें लगता है कि ओह, जब हम 11th-12th में जाएंगी इट्स सो ये वाह ला बड़ी मस्त लाइफ हो जाएगी. फिर जब तुम 12th में आते हो यू फील लाइक कि ओह, जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, फ्रीडम होगी, ब्ला ब्ला. एंड जब तुम कॉलेज में आते हो लाइक जब हम जॉब करेंगे तो ये होगा, ऐसा होगा. सो मतलब you guys are understanding that what I'm trying to say here. So the conclusion is stop thinking and start doing, जो कि शायद हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. मुझे तो बहुत आदत है बचपन से खाली पुलाव पकाने की. ओ मैं तो ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये फाड़ दूंगी, वो फाड़ दूंगी. आज तक वेट तो कम नहीं कर पा रही मैं, बकवास मारते रहूँ. This time I am going to get it. Yes. Now my point is that
कि अब मैंने सोच लिया है कि मुझे यूट्यूब वीडियोस बनानी है, मैं इनफैक्ट बना भी रही हूँ अभी, लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट व्लॉग. नाउ व्हाट शुड आई डू? लाइक इन व्लॉग्स व्हाट शुड आई डू? आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि 25 के हिसाब से आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ 35-year-old women. I don't like to go out, like you know, until unless कुछ काम नहीं हो, कुछ खरीदना नहीं हो, जॉब के नहीं जाना हो. I would prefer sitting at home. But somewhere then I think that this is adult life. यही adult life होती है. But I'm happy. I'm happy, and because क्यों? Because I'm consistent for my job, consistent towards my gym, consistent towards my good eating wala part, and consistent towards my work. So for me, job is something else and work is something else. And how? Because basically I work for myself also, and I work for my living, like job. So I do job currently for my living, and I'm doing work wala part for building, you know, my career and my future. There was a time when I thought that at 25 I will be married and having kids, but here I am, 25 and lost because I have no idea that. So, but I will not say that I'm lost, because when I was 22 or 23, I have no idea that what should I do करियर वाइज. बट एट 25 मैंने वो चीज़ समझ ली है कि मुझे अपने करियर में करना क्या है. ठीक है, तो वो चीज़ क्लियर हो गई है. एंड आई हैव ओवरकम अ लॉट ऑफ फियर्स ऑफ माई सेल्फ, एंड दैट इज़ इनसिक्योरिटी अगेंस्ट माई बॉडी वेट, insecurities against because abhi last year I was surrounded by a lot of influencers, and when I saw them I was like, bro, they all are fucking beautiful and they have something in their self, you know. So abhi recently there is a person, I don't remember her name. I saw her Instagram and she is healthy and cutie patootie. I seriously don't remember her name. So she will be around above 100 kg, and I'm not saying that it is bad. Like if someone is confident in their body, it's like great. But to be very honest, I am not happy with my body weight because I don't know why. I feel like that I'm not having that confidence जो मुझ में पहले था. I am confident when in terms of do and die वाला thing, जब मुझे होता है कि अब तो भैंस की आँख करके ही दिखाना पड़ेगा. Like I have to tell them that I can do this. तो वो चीज़ आ जाती है. But in terms of influencer वाला part and YouTuber and wow, मुझ में नहीं आ पाता, because I have seen them and they all are fucking beautiful, cute, and they know how to do this and do that. But then, cheers to Pragya. She's a good friend of mine जिससे ज़िंदगी में बस एक बार मिली हूँ, and I would love to meet her again. So currently she's on Instagram and her username is Grow with Pragya. And her name is Pragya, and she is amazing person. So I saw her reels currently, and basically her content is very amazing. I just love fun. मतलब वो इतनी प्यारी है ना. I have never seen a content creator जो आपको पुश करे, इफ़ यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, और वो तुम्हें पुश करे कि भाई करो करो. Like you have to start at some point, so that some point is like now you have to do it. अभी के अभी, ठीक है. And आज I sent her a message, bro, I'm going to do this and I'm going to show you my first video. And like I am truly grateful for her, and we are also, me as a part of Prism Crew, which is our company, and I am sort of CEO of that company. Like मैंने कभी नहीं सोचा था कि 25 साल की उम्र में मैं CEO बोल सकती हूँ अपने आप को. And I would love to grow that company. Like
That is my peak. Literally, matlab, we started this company last year in August, and we are starting our second year. Yeah, so today's 27 July, and in August last August we started that company, and I'm so proud of myself and on Ravi that we took this decision. And बीच में there were lot of things happened. हमने थोड़ा सा pause ले लिया because थोड़ा सा issue था. So basically we are media production house and we do everything, and we worked with a lot of cool brands which I can't say or tell about you. But if you guys are going to work with me, of course I'm going to tell you. Yeah, so my point is this, bro, कि मैंने नहीं सोचा था जब मैं 15-18 साल की थी कि मेरा वेट कभी 90 किलो से ऊपर जाएगा. एंड कभी मैंने ये नहीं सोचा था 18 साल की उम्र में कि मैं 25 साल की उम्र में एक कंपनी रन करूँगी. एंड आई हैव अनदर बिजनेस प्लान विच आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन कमिंग दिसंबर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो. लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल प्लेरीज, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड यू नेवर नो कि तुम्हें कब लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल जाए. लाइक आई रिमेंबर वन टाइम, सो मैं बहुत कम ट्रैवल करती हूँ इन मेट्रो. लाइक फॉर नाउ व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन जीके, सो आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली डेली, एंड मेरा पूरा ट्रैवल टाइम अराउंड पर डे का देखा जाए तो 4.5-5 घंटे का तो होता ही था, बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम हुड्डा मेट्रो स्टेशन टू जीके. तो मेरे घर से पहले मुझे हुड्डा मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता था, फिर वहाँ से जीके, एंड फिर वहाँ से ऑफिस से जीके का मेट्रो स्टेशन, फिर देन हुड्डा, एंड हुड्डा से घर. सो इट ऑल टुक टाइम ऑफ अराउंड 5 hours. सो बेसिकली मेरे 24 घंटे में से 5 घंटे तो मैं ट्रैवल ही करती रहती थी दिन के. सो आई वॉज ट्रैवलिंग टू मेट्रो आई थिंक 2 years बैक. इस बात को 2 साल हो गए. एंड देयर वॉज अ यूट्यूबर नेम्ड, आई मीन शी इज़ अ यूट्यूबर named Yupa Rebe, like it's her name on Instagram. So she was just sitting there, mask पहन के, and I just saw her eyes and I know that she is Yupa Rebe. And then because I don't want to be, कि मैं किसी के पास जाके से उसको डिस्टर्ब करूँ कि whether she is or not, like I don't know कि मुझे ऐसी कॉन्वर्जेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो पहले मैंने उसका इंस्टाग्राम देखा, एंड देन आई रियलाइज कि क्योंकि उसने कुछ ऐसी स्टोरीज डाली हुई थी, एंड जो उसने आउटफिट पहन रखा था, लाइक शी वाज आल्सो वेयरिंग दैट आउटफिट. एंड देन आई मैं उसके पास गई एंड आई आस्क्ड हर दैट आर यू यूपा रेबे, एंड शी टोल्ड अस यस. सो एट दैट टाइम शी वाज माय फेवरेट यूट्यूबर. लाइक एट दैट टाइम, ऐसा नहीं है दैट शी इज़ नॉट अ गुड यूट्यूबर, शी इज़. बट so I talked with her. We talked about a lot of things, work related things. We had a great conversation and we left, and I was happy at that day. Like seriously, I was happy. Like basically on top of the world. On top of the world. Like oh, I met her. पूरा fangirl वाला part. So yeah. सो बेसिकली माई पॉइंट इज़ दिस, यू नेवर नो कि आपको ज़िंदगी में कब कहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए. वी वेंट टू बेरौट लास्ट ईयर इन हिमाचल प्रदेश. सो इट्स अ वेरी स्मॉल विलेज. आई थिंक 1000 to 1500 पीपल वहाँ रहते हैं, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल विलेज. लाइक आप पैदल चल के यू कैन कवर द होल विलेज. ठीक है. सो वहाँ पे सिर्फ एक ही स्कूल है विच इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल. बेसिकली हमने वहाँ की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, एंड वी जस्ट हैड दिस रैंडम idea कि we should document this whole thing, and we met amazing teachers. Like basically भाई वो teachers इतने प्यारे थे ना. I will, like if you want to saw that documentary, you can see, मैं तुम्हें लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड अगर मुझे अपनी लाइफ में ऐसे टीचर्स मिलते, although I have one amazing teacher in my life जो मेरे साथ दिन रात रहती है, that is my mother. She is amazing. मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाती अगर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं होते. एंड मोस्टली सबसे ज़्यादा क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ गुड परवरिश दैट गोज़ टू माई मदर, एंड उसके बाद माई फादर. बिकॉज मम्मी होती है. बीइंग अ गर्ल, मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया है. शी नेवर 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 नेवर, अगर मुझसे कोई गलती भी हुई है ना, शी ऑलवेज टोल्ड मी ब्रो वी कैन डू दिस. गलती हो गई है,
ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है वो हमें ढूंढना है. सो मुझे नहीं लगता कि हर पेरेंट्स ऐसा होता है, बिकॉज मैंने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो दे आर नॉट हैप्पी विद देयर पेरेंट्स. एनीवेज, बैक टू द पॉइंट. तो अगर हम बैरोड में नहीं जाते और अगर हमने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो हम इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री कभी शूट कर ही नहीं पाते. एंड मोर ओवर हम इतने प्यारे बच्चों से मिले हैं, इतने प्यारे टीचर्स से मिले हैं. लाइक अगर उस टाइप के टीचर्स हमारे पूरे कंट्री में होना, आई फील लाइक कि बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग हो सकती है ऑफ कमिंग जनरेशन. लाइक सीरियसली. And they were so, all the kids were so humble and kind and well mannered. ठीक है, मतलब अगर तुम शहर के बच्चों को देखते ना तो you feel like, oh bro, what is going on? So my point is, never say no to an opportunity. Never think twice doing anything. Like not ऐसे नहीं कि तुम्हें किसी को मर्डर करना और तुमने किसी का मर्डर कर दिया. नो, लाइक फॉर योर ग्रोथ. इफ़ यू थॉट कि कि यू वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है, तुम बनो, तुम करो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो. अनटिल अनलेस वो किसी के कल्चर को हार्म ना करे, किसी के रिलीजन को हार्म ना करे. इट्स ऑल अबाउट. मैंने ना बहुत डेप्थ में सोचा एक दिन कि दैट व्हाट इज सोशल मीडिया. Social media is basically sharing whatever you want to share. But obviously ऐसे नहीं कि तुम नंगे फोटोज शेयर करो क्यों तुम्हें अच्छा लग रहा है. नो ब्रो, इट्स लाइक if you are doing something and you want to share with the world, like bro, see, I can do this and do that, और मुझे ये अच्छा लगता है करना, and I am a good dancer and you are doing that, do that. Share those videos on the Instagram or make your YouTube channel about it. You can do anything. You can do anything, literally anything. And I am a great example of that. मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई पतला है, अगर कोई किसके पास बहुत सारे पैसे भी हैं, स्टिल दे हैव, कहीं ना कहीं उनके मन में कोई ना कोई इनसिक्योरिटीज़ होगी ही होगी. सेम गोज़ विद एवरीवन. मुझे ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी है जिसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ नहीं होगी या खुद के लिए क्वेश्चंस नहीं होंगे या खुद के लिए सवाल नहीं होंगे, कुछ भी. मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी दुनिया में है. इवन गोज़ लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के साथ ये चीज़ है. अब इसका सोल्यूशन निकालना है कि हमें ओवरकम करना है एंड कर सकते हैं हम. आई फील लाइक कि अगर मैं कर सकती हूँ, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई टुक लाइक बहुत करेज चाहिए टू डू दिस, दैट व्हाट आई एम डूइंग. ऐसे ही हर किसी की ज़िंदगी में एक होता है मकसद जो उसे करना है. हो सकता है कि किसी को एक्टर बनना हो एंड दे आर डूइंग 9 to 5 जॉब. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें वो चीज़ है ना कि मुझे बनना है, मुझे करना है, मेरे को ऐसा लगता है तुम्हें करना चाहिए. लाइक गिव इट अ ट्राई, व्हाई नॉट. लाइक दिस इज़ लाइफ ब्रो. तुम अपने लिए जीने के लिए आए हो, और अगर तुम अपने लिए ही नहीं जियोगे तो तुम्हारी लाइफ में आने का दुनिया में मकसद ही क्या रहेगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें वो अंदर से आ रहा है, तुम्हें इंट्यूशन आ रही है कि तुम्हें करना चाहिए, सो गिव इट अ ट्राई. एंड आई फील लाइक दैट यू कैन डू दिस. इफ़ आई कैन डू दिस देन एनीवन कैन डू दिस. हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से दे चेंज देयर डिसीजन एंड या फिर उनके पाथ चेंज हो जाते हैं. कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट नेवर forget yourself. So my point is this, guys, anyone can do anything. There's something about the manifestation वाला part that is true. मैंने इतनी सारी चीज़ें अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी है कि मैंने अगर सोच लिया है, अगर ठान लिया है, तो लिटरली पूरी कायनात तुम्हें उस चीज़ को अचीव कराने में हेल्प कर देती है. बट ऑफ कोर्स यू हैव टू डू द मेहनत वाला पार्ट. You can't get anything like sitting in one place and you will think कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हों, मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो. Of course you are not getting it. You are not going to have it. क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो. So I want to end this thing. I want to end this vlog. Video. Yeah. And I will come
very soon with another video and with another very pretty ideas. सो क्योंकि मैंने इतने सालों से इतना सारा रिसर्च कर रखा है कि मुझे ये बनाना है वो बनाना है ये वो, तो आई हैव लॉट ऑफ कूल आइडियाज विच आई एम गोइंग टू डू या बाय, you know it. Bye.